نام زویا نذیر ہے اینڈ آج میں دا وائس آف شیفرڈ کی سیکنڈ یوتھ میٹنگ کو پرزائڈ کروں گی. سب سے پہلے تو ہم اس میٹنگ کا آغاز خداوند کے نام سے کریں گے. تو اپنے سروں کو جھکائیں, آنکھیں بند کرے ہم دعا کریں گے. قدوس 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 زندہ آسمانی باپ, تو بھلا ہے, تیری شفقت ابدی ہے اور تیری فداری پشتر پشت ہے خداوند. اور ہم شکر ادا کرتے ہیں اس دن کے لیے, اس وقت کے لیے, اس موقع کے لیے کہ تو نے عطا کیا تاکہ ہم سب تیرے حضور آ سکیں, تیری پرشت و تعظیم کر سکیں خداوند. اے خداوند, اس پوری میٹنگ کو میں تیرے حضور میں دے دیتی ہوں. اس پوری میٹنگ میں ہمارے ساتھ ساتھ رہنا, ہماری پوری مدد و حفاظت کرتے رہنا ہے خداوند. اس میٹنگ کے ایک ایک شخص کو بہت برکت دینا, ان کو چھونا, ان کو برکت دینا ہے خداوند. اس دعا کو سن اور قبول کر مانگتی ہوں تیرے پاک پوتر اور جلالی نام سے, آمین. سب سے پہلے تو میں آپ کا اس میٹنگ میں ویلکم کرتی ہوں, اور میں چاہوں گی کہ آپ سب اس میٹنگ میں اپنا چھوٹا چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیں. سو آئی وڈ ریکویسٹ ایوری ون, باری باری ہم لوگ انٹروڈکشن دیں گے. میں نام لیتی جاؤں گی اور آپ سب انٹروڈکشن دے سکتے ہیں اپنا. سب سے پہلے تو میں امان بابر کو کہتی ہوں کہ اپنا انٹروڈکشن دیں. امن بابر, I'm sorry. My name is Aman, and I'm glad that I'm part of this ministry. And as I grow, I will grow in God. Thank you. تھینک یو سو ویری مچ. اس کے بعد میں ایان جارج کو دعوت دیتی ہوں. Hello everyone, my name is Asmir and I'm the student of St. Anthony's High School and I study in class 10th. Thank you. اس کے علاوہ زمائرہ عاشر ہمارے پاس سب سے ینگسٹ یوتھ ممبر ہے. آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا انٹروڈکشن بھی دیں. Hello, Assalamu everyone. My name is Mara Asher, and I'm also a youth member of this ministry, and I'm very proud to see you guys all together. God bless. السا عارف کو. Good evening, everybody. This is Melissa Arif, and I am from class 8 Pink from St. Anthony High School. And may God bless this our ministry. Thank you. اس کے بعد ہماری ایک اور یوتھ ممبر ہے سسٹر کومل ہارون کو میں دعوت دیتی ہوں کہ اپنا انٹروڈکشن دیں. میرا نام کومل ہارون ہے اور میں وائس آف شیفرڈ منسٹری کی نیو یوتھ ممبر ہوں. گاڈ بلیس یو. اس کے بعد عدیلہ شبیر. Good evening, everybody. میرا نام عدیلہ ہے اور میں بہاؤدین ذکیہ یونیورسٹی ملتان میں اسٹڈی کر رہی ہوں. متیہ قاسم. گڈ ایوننگ ایوری ون. میرا نام متیہ قاسم ہے اور میں کلاس 10 اسٹوڈنٹ اور میں یوحنا آباد سے بلانگ کرتی ہوں. ماہین ملک. مناہم صفدر. میکا صفدر. Hello, my name is Manaham. I'm the member of this ministry, the Voice of Shepherd International Ministry. I'm serving as a worshipper in this ministry. May God bless you all. Thank you. تھینک یو سو ویری مچ. اب ہم اپنی میٹنگ کا آغاز بائبل ریڈنگ سے کریں گے. میں دعوت دیتی ہوں سسٹر کومل ہارون کو کہ وہ خداوند کے کلام سے ہمیں سنائیں. اس میں سے ہمارے لیے آج کا کلام پہلا زبور پہلی آیت سے چھٹی آیت تک. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا. شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے. اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطاکار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے اور شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی.
पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। Amen. Hello, Assalamu everyone. Today's reading is taken from Psalm 1, verses 1 to 6. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doeth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. This is the word of God. अब मैं दावत दूंगी मिनाहम सफदर और मीका सफदर को कि वो हमारी वर्शिप में रहनुमाई करें। Good morning to everyone. My name is Manam Sudhir. I'm a tablaist because of it. We are serving as the worshippers in the Voice of Shepherd International Ministry to people who believe worshiping our Lord. Keith 92. God bless you all. Thank you. सारी तारीफ खुदावंद के बड़े ही की है। इसी दुआ में हम आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी लिसा आरिफ को कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। Please join your hands, close your eyes and start the prayer. Oh my heavenly Lord, thank you for this time that you bless us today and make us capable to follow your commands. Jesus Christ, please bless those who are present in this meeting. Show your glory to us and also bless this ministry and help our leaders to continue this ministry in your name. And especially I pray for our pastor who have the word of God in mouth. In the name of Jesus, amen. Amen. अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिशाइल सफदर से कि वो भी हमारी दुआ में रहनुमाई करें। शुक्र तेरी आज का दिन बख्शा कि तेरी रहनुमाई तेरी सताइश कर सके खुदावंदा। खुदावंदा इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं खुदावंदा उन सबको बरकत देना खुदावंदा, ताकि गाँव जाके हम तेरा नाम को रोशन कर सके खुदावंदा, और हम जिधर भी जाए हमारे
कि खुदावंद तेरे नाम को जलाल दें। खुदावंद हम किधर भी जाए हमारे साथ होना, सबको बरकत देना, सब कुछ मांग तेरे फैसले नाम से आमीन। आमीन। अब हम अपने मीटिंग के सेकंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं, दैट इज थॉट शेयरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थॉट शेयरिंग के लिए मैं अदीला शबीर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने आज के जो थॉट्स हैं वो हम सबके साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज मौका मिला कि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं कि हकीकी मसीही होने का क्या मतलब है या हकीकी मसीही कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मसीह की मानिद बनो। पौलुस रसूल कहते हैं, मेरी मानिद बनो जैसा मैं मसीह की मानिद बनता हूँ। आज हमें यीशु मसीह की मानिद बनने की ज़रूरत है, मसीह यीशु को पहनने की ज़रूरत है। और दूसरा जो मेरा मौजू है वो है मसीह के वसीला से नई जिंदगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात किए मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उसकी नादानी के सबब से जो उनमें है अपने दिलों की सख्ती के बाइस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को अख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम सरंजाम दें। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने सच्चाई के मुताबिक जो मसीह यीशु में है उसी की सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की और रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। बस हर शख्स झूठ बोलना छोड़कर सच बोले। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके समकसों समेत बखूबी जान सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो अदराक से बाहिर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से हमें नादान होने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें खुदावन की मर्जी को समझने की जरूरत है और खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज है और दर्दमंद और मेहरबान और फरोतन और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहने। अगर किसी से शिकायत हो तो दूसरों की बर्दाश्त करें और एक दूसरे के कसूर को माफ करें, जैसा कि खुदावन ने हमारे कसूर को माफ किया। बस जब तुमने मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब हम मसीह को जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करोगे। अगर हम दावा करते हैं कि हम जो है खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो सबसे पहले हमें खुदावन के हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है, खुदावन के साथ रफाकत रखने की जरूरत है, क्योंकि जब हम किसी को जानना चाहते हैं तो हम उसके साथ रफाकत रखते हैं ताकि उसे अच्छे तरीके से जान सके। तो इसीलिए हमें खुदावन के साथ रफाकत रखने की जरूरत है और अपने जामों को बरे के लहू से धोने की जरूरत है और अपनी जिंदगी को जो है पाकीज़गी से और रूल कुदस की हदायत से बसर करने की जरूरत है। और आखिरी हवाला पहला पतरस 4 बाब और उसकी 7 आयत, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर ये कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। आमीन। थैंक यू सो मच। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन।
سسٹر دیلا نے بہت پیارے الفاظ میں ہم سب کو یہ کنوے کیا ہے کہ اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو آپ اس کے حکموں پر ضرور عمل کریں گے. تو میرے خیال سے یہ ایک جو کوٹ ہے، آج کا جو تھاٹ ہے، وہ انتہائی پیارا ہے اور یہ بتاتا ہے اور ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے کہ ہمیں خداوند کے حکموں پر عمل کرنا ہے. اسی طرح میں آسمیر جارج کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آج کا تھاٹ شیئر کریں. جی میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا نام آسمیر ہے اور آج جہاں سے میں نے اپنی تھاٹس تیار کی ہیں وہ ہے پہلا تموتیس، اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت. مقدس پولس رسول تموتیس کو نصیحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. آمین. ہم نوجوان ہوتے ہوئے بخوبی واقف ہیں کہ معاشرے میں کس قدر نیگیٹیوٹی ہے، لیکن اگر ہم نوجوان اپنی حفاظت کریں، کلام مقدس سے رہنمائی حاصل کریں، اپنے آپ کو خداوند کی پروٹیکشن میں دیں گے، خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے ہر فیصلے بنائیں گے، تو کوئی بھی ہماری جوانی کی حقارت نہیں کر سکتا. حقارت مطلب کوئی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں ہر ایک سے محبت سے پیش آنا چاہیے اور ہمارا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا ایسا ہونا چاہیے جس سے ہمارے آسمانی باپ کی جو آسمان پر تک نشیں ہیں اس کی تعریف ہوں. ہمارے کردار میں مسیح کی جھلک نظر آنی چاہیے. ہمیں اپنی نظر، سوچ، دل کو پاک کرنا ہے. اور پاک کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمارا خدا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ پاک ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ. اور نور روشنی میں نہیں چمکتا، نور روشنی میں نہیں بلکہ تاریکی میں چمکتا ہے. یہ دنیا تاریک ہے، اور جب ہم خدا یسوع مسیح کو جو خود نور ہے قبول کرتے ہیں تو وہ اپنا نور ہمیں بھی عطا کرتا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین. تھینک یو. آمین. تھینک یو سو مچ آسمیر. آپ کا یہ تھاٹ بہت زیادہ تھاٹفل تھا، اسپیشلی اس لیے آج کی جنریشن کے لیے. آج کی جنریشن ہے، بے شک آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج کل نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. تو جب ہم خدا کو اپنی زندگیوں میں اپناتے ہیں تو وہ نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. نور تاریکی میں چمکتا ہے. ہم نور ہیں اور یہ جو دنیا ہے، یہاں کی جو نیگیٹیوٹی وہ تاریکی ہے. تو ضرور جب ہم ایک ٹرو کرسچن بن جاتے ہیں تو وہ نور اس تاریکی میں ضرور چمکتا ہے. تو اسی میں آگے بڑھتے ہوئے میں متیا قاسم کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ ہماری دعا میں رہنمائی کریں. آسمانی باپ، میں آپ کو شکر کرتی ہوں خداوند آج وقت کے لیے آپ نے جو خوبصورت دن ہم سب کی زندگیوں میں عطا کیا. خداوند ہم اس لائق تو نہ تھے کہ آج کا دن دیکھتے، لیکن ہم اس لائق کرتی ہوں. خداوند میں آپ کا شکر کرتی ہوں اس میٹنگ کے لیے. خداوند شروع سے لے کر آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہنا، ہماری نگہبانی اور حفاظت کرنا. خداوند جو آپ کی بیٹیاں اور بیٹے خداوند جس دعا کو سن رہے ہیں، خداوند ان سب کو بھی بلیس کرنا اور بڑی برکت دینا. یسوع کے نام سے دعا ایمان سے پا لیتی ہوں. آمین. آمین. اس بعد میں ماہین ملک سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بھی ہماری دعا میں رہنمائی کریں. So we'll start. Thank you, God, for everything done for us and for everything you've given us. Thank you, Lord, for leading us in the way that we are, in the way that we're preaching your word everywhere we go and everywhere we walk with our steps, that you've given us the strength to have a physical body. Thank you for giving us these opportunities to pass on your words to people who don't know and aren't full of acknowledgement of your divine hands yet. Thank you for providing us with everything that you've given us, with a physical healthy body, with a good mind that praises you and spreads your word throughout everywhere we go, and a good mind that knows everything that you've done for us. Thank you for letting us have the opportunity to come along with like people who have the same cause as us, who want to help people understand more and want to know more about you and your words. I want to praise you for everything that you've done for us. Please let us have the opportunity to fully know more knowledge about you and spread these words towards other people with the videos that we provide online. Thank you for letting us have the opportunity to go international with this, and for
everything that you've done for us. Please let our success go wide and let us go more international, not only in Pakistan, not only in Canada, but everywhere in the world, so that we can truly spread your words throughout everywhere. Let us all have the blessings that we truly need in our life, in our work, in our studies, and let us get everything that we want and need, because you're always there for us, Lord. You sacrificed your only Son for us. You've done everything you can for us. And we want to give back to you by doing these simple acts that don't even take much, don't even need us to do much, but we want to do it for you, O Lord. Please everything go well. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 मीटिंग के आखिर में मैं सर्मन के लिए रिक्वेस्ट करूंगी इवेंजलिस्ट नाइला यूनुस को कि वो आज का सर्मन हम सब के साथ शेयर करें. थैंक यू सिस्टर जी. थैंक यू सो मच. सबसे पहले मसीह में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम. सब कैसे हैं? ओके. इससे पहले कि हम आज के डिवोशनल थॉट की तरफ आगे बढ़ें, मैं चाहूंगी कि हम सब ठीक है, मैं आपके लिए और खुद के लिए जो है ताकि जो कुछ आज हम सीखें खुदा को, तो आए चंद सेकंड्स के लिए अपनी आंखों को बंद करें और हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के ताबे करेंगे कि खुदावंद आज हमारे साथ बात करे. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में देख हम तेरी हुजूरी के अंदर आते हैं और अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी ऐसी मोहब्बत के लिए जो तू हमसे करता है. खुदावंद हम गुनहगार हैं लेकिन तू हमें प्यार करता है. हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे लव के लिए खुदावंद, और चाहते हैं खुदावंद वो कलाम जो जिंदा है, जो मोतबर है, जिसे तूने अपने हर नाम से बढ़कर ज्यादा अजमत दी है, वो कलाम आज मेरे लिए और इन तमाम लोगों के लिए बाइसे बरकत हो. हमें फजल देना खुदावंद कि हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सकें. मसीह के नाम में आमीन. आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने पास बाइबल को लेकर बैठे हैं, कलाम मुकद्दस आपके पास है. तो आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से जो जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है, आए हम आज उस कलाम में से अपनी नसीहत के लिए देखेंगे. इस बात पर ईमान रखें कि खुदा का जो कलाम है वो बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और जब वो कलाम सुनाया जाता है वो अपने अंदर एक बहुत तासीर रखता है. वो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बहुत काफी है. वो मिरेकल करता है, और वो मुर्दों को अगर जिंदगी दे सकता है, वो गुनाहगार लोगों को उनकी जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है. और आज मैं बिलीव करती हूँ इस बात पर कि जो कलाम हम सुनेंगे, जो डिवोशनल थॉट हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई के वसीले से सुनने वाले हैं, वो मेरे लिए और आपके लिए बाइसे बरकत होगा. आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, 3 बाब, और हम उसकी 16वीं आयत को पढ़ेंगे. हम 16वीं आयत की तलावत करेंगे. मैं एक मरतबा फिर से हवाले को रिपीट करने वाली हूँ, दोहराने लगी हूँ. यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, 3 बाब और 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे. और ये एक ऐसी आयत है जिसे मैं और आप हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं और संडे स्कूल में याद करते आए हैं. खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. आमीन. खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो.
इस आयत के बारे में कहा जाता है माय डियर्स कि ये आयत जो है वो न्यू टेस्टामेंट यानी नए अहदनामे का जो है वो हार्ट है, दिल है। इस आयत के अंदर हमें खुदा का प्लान नजर आता है, खुदा का मंसूबा नजर आता है। इस आयत की चंद एक ऐसी खास बातें हैं जिसने मुझे अट्रैक्ट किया जब मैं मसीह यीशु में आई। मैं गुनाह में जिंदगी गुजार रही थी और मसीह के पास नहीं थी, लेकिन एक मिशनरी टीम के वसीले से इस आयत को जब मैंने सुना, पहले भी बहुत बार सुना मैंने और बहुत ज़्यादा सरमन्स भी सुने, संडे स्कूल में भी इस आयत को मुझे याद करवाया गया। लेकिन जब मैंने इस बात को सीख लिया कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, उसने मेरी मोहब्बत में अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया, तो आप यकीन माने इस मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया और आज भी खुदा की मोहब्बत मेरे लिए काफ़ी है। ये आयत जो है इसमें हमें खुदावंद का दिल, खुदावंद का हार्ट नज़र आता है, खुदावंद का प्लान नज़र आता है। और इस आयत में सबसे पहली बात ये लिखी हुई है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। अगर हम इसको स्टडी करते हैं इस आयत को, तो इस आयत में जो वर्ड, जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मोहब्बत के लिए, यूनानी ज़ुबान में अगर इसको देखा जाए, नया अहदनामा ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो यूनानी लैंग्वेज में लिखा गया है और अगर हम उसी सेंस में देखें तो वहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अगापे। और ये वर्ड ऐसा है, इसका मतलब ये है ऐसी मोहब्बत जो खुदावन इंसान से करता है। सबसे पहले खुदा हमसे मोहब्बत करता है और ये एक ऐसी मोहब्बत का नाम है जिसके जवाब में हम भी खुदावन से मोहब्बत करते हैं। मीन्स इस आयत में हमने देखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। ये नहीं लिखा कि पहले दुनिया ने खुदा से मोहब्बत रखी, पहले खुदावन ने स्टेप लिया, खुदा ने हमसे प्यार किया, हमसे मोहब्बत की। आज अगर हम देखें यंगस्टर्स को, मैं भी इसी माशरे में रहती हूँ और आप लोग भी यहीं पे रहते हैं और हम सब बाखूबी इस बात से वाकिफ हैं कि आज हर एक बंदा जो है, हर एक इंसान मोहब्बत के लिए तड़प रखता है अपने अंदर, प्यास है उसके लिए अंदर कि कोई उसे ऐसा शख्स मिले जो उससे प्यार करे। और इस प्यार की तलाश में, इस मोहब्बत की तलाश में हम इस दुनिया में भटक जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम इस मोहब्बत को दुनिया में तलाश करते हैं। आप सब यंगस्टर्स हैं, आप अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं। मैं भी एक नौजवान हूँ और मैं भी इसी एज में से गुजर रही हूँ और मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ। कई बार हम अपने हालातों से इस तरह से मायूस होते हैं कि हम मोहब्बत की तलाश में खुदावंद को छोड़ देते हैं, इस बात को छोड़ देते हैं कि हमारा खुदा हमसे किस कदर प्यार करता है। हम उस मोहब्बत को तलाश करने के लिए हम दुनिया में जाते हैं और दुनिया में हम, आप जानते हैं कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, हम बैड रिलेशनशिप का शिकार हो जाते हैं। वो मोहब्बत जो हम दुनिया में तलाश करते हैं, हम किसी एक इंसान को चुनते हैं और चाहते हैं कि ये हमसे प्यार करे, मोहब्बत करे, आप बदले में उससे प्यार करें। लेकिन याद रखें, उस एक इंसान ने जितनी आपसे मोहब्बत करनी है वो ट्रू लव नहीं है, इस बात को कभी मत भूलें। वो मोहब्बत जो खुदा आपसे और मुझसे करता है, कभी उसकी तरफ गौर करें, आपको उस एक शख्स की मोहब्बत से वो मोहब्बत बहुत ज्यादा लगेगी। खुदा आपसे ऐसा लव करता है कि उसने आपकी मोहब्बत में अपने इकलौते बेटे को दे दिया जिसका नाम यीशु मसीह है। इकलौते का मतलब है उस जैसा कोई नहीं, कोई एक भी नहीं। बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल फरमाते हैं कि नेकोकार शख्स के लिए, कोई नेक इंसान है तो उसके लिए भी कोई शख्स मुश्किल से ही अपनी जान देता है। लेकिन इस बात को याद रखें कि मैं और आप नेक नहीं थे जब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सलीब पर मसलूब हुए। हम गुनहगार थे, वी आर सिनर्स, हम गुनाह में जिंदगी गुजार रहे थे। उस वक्त यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी जान,
उस वक्त खुदा ने मेरे और आपसे मोहब्बत की। आज भी अगर देखें तो लवर्स जो हैं वो चांद तारे तोड़ने की बातें करते हैं, लेकिन कोई आपके लिए जान मुश्किल से दे सकता है। आज के दौर में कोई ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात को याद रखें कि खुदा ने आपके साथ ऐसी मोहब्बत की है कि उसने आपकी मोहब्बत में अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया है। और ऐसा क्यों किया? उसने अपने बेटे को इस दुनिया में क्यों भेजा और कुर्बान कर दिया? मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप नजात पाएं। आप सबके माइक म्यूट हैं, लेकिन आप सब मुझे सुन सकते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि खुदा आपसे प्यार करता है? जरा अपने हाथों को उठाएं, मैं देखना चाहती हूँ। बहुत सुन होके बैठे हैं सभी लोग। मैं आपके रिस्पॉन्स को चाहती हूँ। आमीन। थैंक्स एवरीवन। खुदा ने मेरी और आपकी मोहब्बत में अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि मैं और आप नजात पाएं, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, ताकि मैं और आप गुनाहों से आजाद हो जाएं। कोई भी एक शख्स जो है वो मुझे और आपको गुनाहों से पाक नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह के खून के अंदर ऐसी कुदरत है जिसने मुझे और आपको आजाद कर दिया है हमारे गुनाहों से, हमारी बदकारियों से। उसने हमारी मौत, सजाएं, गुनाह, सब कुछ, हमारी लानतें, सब कुछ सलीब पर उनका बरमला तमाशा बना दिया। उसने उनको खींच डाला। उसकी कुदरत ऐसी थी कि उसने हर एक चीज पर वो हावी हो गया। उसने फातेह पाई। और आज अगर हम इतनी बड़ी मोहब्बत को, इस मोहब्बत के लेवल को भूल कर अगर हम दुनिया के अंदर उस मोहब्बत को तलाश करने के लिए जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम बेवकूफ़ हैं। हम सब कुछ जानते हुए भी इस दुनिया के अंदर मोहब्बत को तलाश करने जा रहे हैं, जबकि मेरे और आपके पास तो ऑलरेडी ऐसा लव है जैसा कोई नहीं कर सकता। मुझे और आपको तो ये लव दुनिया को बताना चाहिए, तो फिर हम दुनिया के अंदर मोहब्बत तलाश करने क्यों जा रहे हैं? खुदावंद की मोहब्बत पर यकीन रखें, यकीन माने। अगर आप अच्छा लाइफ पार्टनर भी चाहते हैं ना, खुदावंद की मोहब्बत पर यकीन रखें, खुदावंद आपको प्रोवाइड करेगा। आपको दुनिया के अंदर मोहब्बत तलाश करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिलीव ऑन गॉड। सिर्फ खुदावंद पर एतमाद रखें, उसकी मोहब्बत पर एतमाद रखें। लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा, यीशु मसीह पर, वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मर तो गया, उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, दुख बर्दाश्त किए, उसे कोड़े लगाए गए, हर एक चीज उसने मेरे और आपकी मोहब्बत में बर्दाश्त की। वो सलीब पर मर गया, वो दफन हुआ, लेकिन मेरे अजीजों वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस बात को अच्छे से जानते हैं। लेकिन अभी वो वक्त है कि यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आने वाले हैं और उन लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे जो यीशु मसीह पर और उसकी मोहब्बत पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम मसीह पर ईमान लेकर आएं ताकि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। हमेशा की जिंदगी क्या है? अगर हम मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि हमेशा की जिंदगी ऐसी है, उसमें ना रोना है, ना दुख है, ना तकलीफ है, उसमें सिर्फ आप शादमानी हासिल करेंगे। आप इस दुनिया के अंदर तो बीमारी में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी ऐसी नहीं है मेरे अजीजों। आप बीमारी के साथ मर जाएं, लेकिन गुनाह में ना मरे। खुदावंद की मोहब्बत में रहते हुए आप उस तक जाएं ताकि आप हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें। और लिखा है कि आप हलाक नहीं होंगे, बल्कि आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हम मर तो जाते हैं, लेकिन इस मौत के बाद भी एक मौत है और उसे अब्दी मौत कहा जाता है। हमेशा की मौत। आप जलते रहेंगे, आप तकलीफ में रहेंगे मरने के बाद भी, लेकिन हमेशा की जिंदगी ऐसी है कि आप मेरे अजीजों यहाँ से, इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपकी रियल लाइफ स्टार्ट होने वाली है आसमान पर। आप हमेशा की जिंदगी को हासिल करोगे, आप हमेशा हैप्पी रहोगे। अगर आप यहाँ पे दुख उठाते हो, लेकिन वहां पर आपके लिए शादमानी है, सुकून है। यहाँ पर आप रोते हो, लेकिन वहां पर कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पर खुदा आपके आंसू पहुंचने के लिए तैयार बैठा है। आपको और मुझे सिर्फ खुदावंद की मोहब्बत पर ईमान रखने की जरूरत है। मुझे और आपको किसी की लव की जरूरत नहीं है।
सिर्फ खुदावंद पर भरोसा रखें। आज के बाद यकीन करें इस बात का, आपको दुनिया में मोहब्बत तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मसीह की मोहब्बत को अपना सेंटर बना लेते हो, आपको दुनिया के लव की नीड नहीं है। आप सिर्फ खुदावंद पर बिलीव करें। उसने मेरी और आपकी मोहब्बत में अपनी जान दे दी है। इस बात को हमेशा रिमेंबर रखें। ये गुड न्यूज़ है बहुत बड़ी। इसी बात को जो है वो इस बात ने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया। यही बात मैं आप तक डिलीवर कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसी बात को दूसरों तक लेकर जाएँ। आप उन्हें भी मसीह की मोहब्बत के बारे में बताएँ, ताकि वो भी हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। हम में से बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते या शेयर नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट को शेयर नहीं करते और मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो प्लीज़ आप कभी भी अपने पास्ट को शेयर ना करें। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हम अपने माज़ी में ऐसी गलतियाँ कर चुके होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये गलती अपने माज़ी में की भी होगी। लेकिन आज उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। सिर्फ खुदावंद की मोहब्बत पर ईमान रखें और हमेशा की ज़िंदगी आपका वेट कर रही है। आज भी अभी वो जो वक़्त है, वो टाइम जो है वो दूर नहीं है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। लेकिन अभी भी अगर आप मसीह की मोहब्बत को छोड़कर दुनिया में भागते हो, तो जब यीशु आएगा तो फिर आप क्या आंसर करोगे? कुछ भी नहीं। आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर आप मसीह के साथ आसमान की बादशाही में एंट्री लेना चाहते हैं ना, तो दुनिया की मोहब्बत को छोड़ दें। खुदावंद की मोहब्बत पर यकीन करना स्टार्ट करें। अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। आप बहुत प्रीशियस हैं, आप यीशु मसीह के खून से खरीदे गए हैं। हम सब यंगस्टर्स हैं, हम सबको इस बात से अच्छे से वाकिफ होने की ज़रूरत है, हमें जानने की ज़रूरत है कि मसीह की मोहब्बत मेरे और आपके लिए काफ़ी है। हमें अपनी नीड को, आप समझते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्यार करे तो उस मोहब्बत को तलाश करने के लिए दुनिया में मत जाएं। सिर्फ खुदावंद पर ईमान रखें, ये आपके लिए काफ़ी है। खुदावंद आप सबको इस डिवोशनल थॉट के वसीले से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। Amen. Amen. Thank you so much, sister. आपके इस मैसेज से मुझे तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिली है और मैं मानती हूँ कि खुदा से मोहब्बत करना दुनिया में मोहब्बत टूटने के इक्वल हो ही नहीं सकता। खुदा की मोहब्बत सबसे बरतर है। आप जब दुनिया से मोहब्बत बेशक ही है, दुनिया में मोहब्बत टूटने की बजाय खुदा से मोहब्बत करें तो आपको सारी चीज़ें मिलती चली जाती हैं। तो मेरे लिए आपका ये थॉट, ये डिवोशनल थॉट बहुत ब्लेसिंगफुल था। मुझे बहुत बरकत मिली है इसमें। खुदावंद आपको भी मजीद खुदावंद के काम में और बढ़ाता रहे। एंड थैंक यू सो वेरी मच। आमीन। इस मीटिंग के आखिर पे मैं स्पेशली पास्टर आशिर को रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनकी वसीले से ये यूथ एक बन पाई है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आखिर पे अपने थॉट जरूर शेयर करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं सूरत इस मैसेज के लिए जो आज एवेंजलिस्ट जो है नाइला यूनुस के वसीला से हम सब तक आया है। और ये मैसेज जो है सिर्फ जो है वो यूथ के लिए जो है नहीं है, ये मैसेज हम सब के लिए है, इक्वल है, क्योंकि कलाम मुकद्दस हम सब के साथ बात करता है, इक्वली बात करता है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ नाइला आपको, और आपको मैं जो है मुबारकबाद मैं देता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह में आपकी जो है वो ग्रोथ हुई है खुदावंद के जो है कलाम के वसीला से, एंड वी अप्रिशिएट। और मेरी सबसे जो है दरख्वास्त है कि हम सब जो है नाइला के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं खूबसूरत इस मैसेज के लिए कि जो है खुदा ने आपके दिल में जो है वो डाला है जो है खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से। एंड आई एम टू मच ब्लेस्ड। और मैं खुदावंद का मैं खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ खूबसूरत इस जो है कलाम के लिए, आपके लिए, आप सब के लिए। आप जो है यहाँ पर जो है जितने भी आज यहाँ पर अवेलेबल हैं और जो है किसी भी वसीला से जो है नहीं आ सके, एनी रीजन, जो है वन बाय वन जो है हर एक का नाम लेकर आपको जो है मुबारकबाद जो है देना जो है चाहता हूँ कि हम सब एक चर्च है, हम सब एक बदन है, हम सब जो है मसीह का हिस्सा है। हम जो है मिसिया के लिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। मैं अहम के लिए
मीका के लिए, जो है मिशाइल के लिए खुदावन का मैं शुक्र करता हूँ। मैं हारून के लिए और जो है कोमल के लिए खुदावन का शुक्र करता हूँ। अमन के लिए, ईमान के लिए, महीन के लिए, जो है जोया के लिए, दाइम के लिए, और जो है अस्मीर के लिए, अयान के लिए, इसके लिए, जुमायरा, अदीला और जो है ट्रीजा, और जो है हमारे साथ ईमान है, इश्बा हमारे साथ है, और सुलेमान के लिए और तमाम तरह के वालदैन के लिए हम खुदावंद के जो है वो शुक्र। ये छोटी बात नहीं है। ये जो काम आपने आज आप जो है वो कर रहे हैं, आप अपने टाइम को जो है निकाल कर आपने जो है अपने आप को खुदावंद के लिए जो है डेडिकेट एक वही बंद करे आपका करे अ वेरी फॉर एवरीवन। ये आज हमारे लिए बहुत ही जो है बायसे जो है बरकत है, और मैं खुदावंद का मैं शुक्र करता हूं कि खुदा आप लोगों को तैयार कर रहा है। इसके लिए हम खुदावंद के इंतहाई जो है वो शुक्रगुजार हैं। अदीला के लिए हम खुदावंद के जो है शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बड़ा खूबसूरती से जो है आज अपनी थॉट को जो है शेयर जो है किया कि खुदा सबसे जो है डिफरेंट तरीके से जो है बात करता है। हम खुदावंद के इंतहाई जो है शुक्रगुजार हैं। अश्मीर के लिए खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ा खूबसूरती से खुदावंद के जो कलाम को जो है बयान किया कि खुदा जो है किस तरह हमसे बात करता है। दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। और अजीजों, बच्चों, खुदा आप सबको इस दुनिया में अंजील की मनादी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैं जो है महीन के लिए खुदावन का मैं शुक्र करता हूं। उन्होंने जो है दुआ की कि खुदावन हमें जो है इस जमीन पर इस्तेमाल करना जो है चाहता है। और आज हम सब उस जो है ग्राउंड पर हैं कि हम अपने आप को जो है तैयार करें। ये उस वक्त होगा जब हम अपने आप को डेडिकेट करेंगे, जब हम अपने आप को खुदावन के सामने हम जो है पेश करेंगे। वो जैसे आज हमारे साथ जो है डॉक्टर जो है जोया है, वो आज जो है आज की इन्होंने जो है मीटिंग को जो है प्रेजाइड किया। और ये सारी जो है बातें, ये जो है सारा काम उस वक्त होगा जब हम मसीह से मोहब्बत रखेंगे। आज हम सब इकट्ठे हैं मसीह की मोहब्बत के वसीला से। इस दुनिया के अंदर कोई हमसे मोहब्बत नहीं जो कर सकता सिवाय खुदावंद यीशु अल मसीह के, क्योंकि हम सब उसी के वसीला से हैं। हम इस जमीन पर जो परदेसी और मुसाफिर हैं। हम सब यहाँ पर जो पिलग्रिम्स हैं। हम यहाँ पर जो मुसाफिरों की मानिंद आए हैं, और हमें एक दिन अपने खुदावन के पास वापस जो है वो जाना है। और इससे पहले कि हम उसके पास जाएं, उससे पहले कि खुदावन, मेरा ईमान है कि खुदावन यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, हमारा खुदावन बहुत जल्द हमारे जो साथ होगा। मैं खुदावन का मैं शुक्र करता हूँ एक बार जो फिर से आप सब के लिए, आपकी जो फैमिलीज के लिए हम खुदावन के इंतहाई जो है शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आप सबको जमीन की इंतहा तक इस्तेमाल करे, अंजील की जो है वुसअत के लिए, अपने जो है कलाम के लिए, और जो है खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बहुत ज्यादा जो इमोशनल हूं अभी इस सारी जो है चीजों को जो है लेकर, लेकिन खुदावंद आपको फिर जो है बहुत ज्यादा जो है बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। Thank you so much, Pastor Asher. बात के आखिर में अगर कोई दुआ करना चाहता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने हैंड रेस करें, तो मैं आपको कोई भी दुआ कर सकता है। ब्रदर हारून को मैं दावत देती हूँ कि वो आखिर पे हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरी यूथ के लिए दुआ करें। कुदूस कुदूस पाक दिल की करे तो तेरा शुक्र गुजार। हाय खुदा पाक खुदा, कितना शुक्र करूं इतना कम है। आज के कलाम के लिए सुबह तेरा शुक्र करता हूँ। सुबह उसे और बरकत दे। यूथ के साथ होना है खुदा, इस आज इकट्ठे में उसके लिए भी तेरा शुक्र गुजार हूँ। आए खुदा पाक खुदा, ऐसे इकट्ठे होते रहे हम। आए खुदा पाक खुदा, और बरकत पर बरकत दे यूथ को, और आगे बढ़ने का फजल दे। आए खुदा पाक खुदा, पूरे वर्ड के लिए दुआ करता हूँ। तो पूरे वर्ड के लिए वर्ड से ही कर अरे सुबह ऐसे ही मसीह को ऊपर से ऊपर करते रहना। आज के दिन के लिए, आज तेरा पाक दिन था, उसके लिए भी मैं तेरा शुक्र गुजार। आए खुदा पाक खुदा, ऐसे ही जरारी काम करते रहना। आए खुदा तेरा शुक्र और तेरी तमदीद करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन।
تھینک یو سو ویری مچ. مجھے یقین ہے کہ جس طرح میں نے اس میٹنگ سے بے شمار برکت حاصل کی ہے, یہاں بھی موجود اس میٹنگ میں موجود ایک ایک شخص نے اتنی ہی برکت حاصل کی ہے, بلکہ زیادہ برکت حاصل کی ہے. اس میٹنگ کے ذریعے خدا سب کو بہت برکت دے, سب کو خداوند اپنے ایمان میں اور بڑھاتا چلا جائے. اور میں امید رکھتی ہوں کہ آئندہ بھی آنے والی میٹنگز میں ہم سب اکٹھے ہوں اور آئندہ کو یہ یوتھ مزید بڑھ سکے. تو ہم thankful to everyone present here and thank you so very much for joining us. اور خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو. ہلیلویا. آئیے ہم سب جو ہے مل کر جو ہے خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں جو ہے شامل ہوں, اور ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور ہم خداوند کی سکھائی ہوئی جو ہے دعا میں جو ہے شامل ہوں گے, جیسا کہ خداوند نے اپنے شاگردوں کو جو ہے دعا کرنا جو ہے سکھایا. خداوند نے کہا تم اس طرح جو ہے دعا کیا کرو, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری تیری بادشاہی بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس ہمیں قصور والوں کو معاف کر, تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے, بلکہ برائی سے بچا, کہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہے. آمین. خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک کل ایمانداروں کے ساتھ, عالمگیر کلیساؤں کے ساتھ, تمام اس یوتھ کے ساتھ آج سے لے کر اب تک ہوتی رہے. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام میں مانگا ہے اور اپنے ایمان سے پا لیا ہے. آمین. گاڈ بلیس یو. آپ سب کو بڑی جو ہے برکت دے اور اپنے جو ہے جلال کے لیے جو ہے کثرت سے